everyone. Today we have discussed the topic polynomial. Polynomial is very important topic related to the 9th and 10th. The polynomial is an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. For example, suppose that 3x cube plus 2x square minus 7x plus 5 is a polynomial. Polynomial in one variable of x. Examples given is the 5x cube minus 4x square plus 6x minus 3 is a polynomial in one variable of x. So one variable of x means here the one algebraic term x. If polynomial in 5y cube minus 4y square plus 6y minus 3, it means is a polynomial is one variable of y. If any polynomial is right, the 3x square minus 5y plus 7, it means here two variable, one variable is x and another variable is y. Understood? Now the next topic is degree of a polynomial. The degree of the polynomial means let px be a polynomial in x, then we define the degree of the polynomial px as the highest power of the variable x in the polynomial px. It means, for example, x cube plus 4x square minus x to the power 7. What is the highest power? Here is the 3, here is the 2, here is the 7. So we can see here the highest power is 7. So degree of the given polynomial is 7. Another example, x cube plus 4x square plus 4x plus 6. Just what is the highest power? I hope understood. Here is the power 3, here is the power 2, here is the power 1 and here is the power 0. So highest power is 3. Now in the next example 3 plus 2x. अब अगर किसी की पावर कुछ नहीं लिखी है तो 1 होती है, जैसे 2 की पावर 1 तो 2 1 होगा, x की पावर 1 इट मीन्स x 1 टाइम, x स्क्वायर इट मीन्स x की पावर 2 सो x इंटू x. सो सिमिलरली 3 प्लस 2x x की पावर 1 तो हाइएस्ट पावर इज 1. हियर इज द 7, नो x power, no here, so we can say this power is 0. Got it? I hope everyone understood regarding the polynomial and degree of the polynomial. Now we have moved toward the next topic, classification of polynomial in one variable. 3 parts. One on the basis of the degree of the variable, second one on the basis of number of term, third one constant polynomial and zero polynomial. So first we have discussed on the basis of degree of a variable. First one, linear polynomial. What is the linear polynomial? Linear polynomial is degree 1. Linear polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. For example, 2x plus 5, just you see x to the power 1. So linear polynomial in x. Next example, 7y minus 9, y to the power 1. So degree 1. Next one, 5z plus root 7, z to the power 1. So here degree also 1, called the linear polynomial. Another quadratic polynomial. What is the quadratic polynomial? A polynomial of a degree 2 called the quadratic polynomial. For example, 3x square plus 7x plus 9 is a quadratic polynomial,
polynomial in x. Highest power is 2. Here 2, here 1, here 0. So highest power is 2. Next example, 5y square minus 6y minus 3. So highest power is 2. Got it? Next one, cubic polynomial. A polynomial of degree is 3 called the cubic polynomial. 7x cube minus 5x square plus 3x minus 9. So here we see the highest power is 3. Similarly, next example, 6y cube minus 7y square plus 5y plus 1. So here highest power is 3. Just we summarize the highest power 3 called the cubic polynomial, highest power 2 called the quadratic polynomial, highest power 1 called the linear polynomial. And next one is the biquadratic polynomial. What is the biquadratic polynomial? The biquadratic polynomial is this. The degree of polynomial is 4 called the biquadratic. For example, 5x की power 4 minus 7x cube minus 10 called the biquadratic polynomial. Got it? If polynomial called the degree n called the expressions of this called the polynomial of n term. So same condition on the basis of number of term. On the basis of number of term. Number of term means previously we have discussed on the basis of degree of variable, and now we have discussed on the basis of number of terms. First one, the mononomial. Mononomial means single term. Single term means 7. Mononomial. 5x mononomial. 3x cube mononomial means single term. Single term called the mononomial. Binomial called two non-zero term called the binomial. Bi means 2. Bi. Bi means 2. Binomial means 2 term. First one 5 plus 7x. 2 term 1 and 2. Next one 7x square y plus 3. Just you see here is the one term and second term called the binomial. A polynomial containing 3 non-zero term called a trinomial. Tri means 3 term. For example, 8 plus 3x plus x square called the trinomial. Another example, 6xy square plus 5xy plus 7 called the trinomial. So dear children, we have discussed on the basis of number of terms. First one mononomial, single term. Binomial, 2 term, 1 2 1 2. Trinomial, 3 term, first term, second term as well as third term. So now we have डिस्कस्ड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस चीज़ पे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड पॉलिनोमियल के टर्म क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, एंड अनदर इज द ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म. नाउ एक और रह गया हमारे पास, कौन सा रह गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? Constant polynomial containing only one term which is a constant is called a constant polynomial. एग्जाम्पल अगर कंसीडर करें इसका तो हम देखते हैं 3 माइनस 7/4 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? एक ही टर्म है इनके बीच में, वो भी कांस्टेंट है, सो कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड अदर इज द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल.
The constant polynomial 0 is called the zero polynomial. The constant polynomial 0 is called the zero polynomial. तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या क्या चीज होती है। थोड़ा सा यहाँ और हम लोग चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टर्म किसको कहते हैं? टर्म तो टर्म क्या चीज होती है? द पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ टर्म। वो सेपरेट कैसे होता है? टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, और ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। आई रिपीट, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एग्जाम्पल लें एक छोटा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और इसमें कितने एक्सप्रेशंस हो गए? पहला एक्सप्रेशन हमारा एक्स स्क्वायर है, दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? 4x है, और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है? 7 हो गए। तो एक्स स्क्वायर 4x एंड 7 इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टर्म है, फर्स्ट सेकंड, ये एक्स स्क्वायर 4x, दिस इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड हियर द कोफिशिएंट, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट मतलब इसके बगल में क्या है? इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स की। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं 4, बट 4 नहीं है, विद साइन बोलिए, -4। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि फिर आपने एक्स स्क्वायर में 1 क्यों लिखा? तो अगर कोई साइन नहीं लगा है तो हम प्लस मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? +1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -4। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -4। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? 7। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? +1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -4। कांस्टेंट टर्म क्या है? 7। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? 7। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि आप और एक एग्जाम्पल ले लें तो और बेटर हो जाएगा, जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 हैज हाउ मेनी टर्म? 1 2 3 4। हाउ मेनी टर्म? 4 टर्म्स। विच 4 टर्म? 3x³ 2x स्क्वायर 7x and 5. These are term. Here with coefficient of x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? +2 होगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा? -7 होगा। कांस्टेंट किसको कहेंगे? जो कुछ नहीं, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, कॉल्ड द कांस्टेंट। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड रिलेटेड टू द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल मतलब जिसमें कि एक टर्म, पॉलिनोमियल या बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स a polynomial containing only one term which is a constant is called a constant polynomial. Zero polynomial, the constant polynomial 0 is called a zero polynomial. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने डिस्कस किया। लीनियर पॉलिनोमियल में सिंगल डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 डिग्री होगी। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, और हमने ऑब्जर्व किया इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो पहले तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? Let Px be a polynomial in one variable and a be a real number such that the value of polynomial at x equal to a is 0. Pa equal to 0, then a is said to be 0 of the polynomial Px. ये डिफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने भी बुकों में पढ़ी होगी, हमने भी वही लिख दी। तो फिर डिफरेंस क्या रहा कि हमारे और आप में क्या डिफरेंस रहा? आप कहोगे सर वही तो बुक में भी लिखी थी, वही आपने भी लिख दी, मतलब कुछ समझ में जनरली नहीं आया। तो इसका बेटा मतलब ये होता है
कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा हम एक सिंपल क्वेश्चन आपको लेके एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका आया, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या बुक में लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है 2x+4। इसका क्या निकालना है? फाइंड अ जीरो। जनरली यही क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना होता है, हम हर क्वेश्चन को px जरूर लिखते हैं। px मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x। तो 2x+4 हमने लिख लिया। अब हम यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग px इक्वल टू 0, यानी इस पूरे इक्वेशन को हम 0 पुट कर देंगे। तो px हमारा है किसके बराबर? 2x+4 इक्वल टू 0। 4 राइट हैंड चला गया, माइनस का 4 हो गया। 2x इक्वल टू -4 आ गया। x इक्वल -4/2 सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस का 2 आ गया। x इक्वल -2। सो नाउ वी कैन से x इक्वल -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो क्यों बोला जाता है? ये इसका जीरो निकल के आया। अब इसको जीरो ही क्यों कहते हैं? इसको जीरो इसलिए कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू को यहाँ सेटिस्फाई करा दें, जिसको कि रूट बोलते हैं, तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। कैसे? वेरीफाई करके हम आपको दिखा रहे हैं। px इक्वल 2x+4, आपने x की वैल्यू क्या निकाली है? -2। तो 2 इंटू -2 + 4, 2 2 जा -4 + 4, -4 + 4 रिजल्ट क्या हो गया? 0। पूरा पॉलिनोमियल हमारा किसके इक्वल आ गया? 0। इट मीन्स दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो मतलब जब हम क्वाड्रेटिक करते हैं तो वहां वो चीज रूट में आती है, तो वही सेम है। इट मीन्स px is a number of alpha such that p alpha is equal to 0 of the polynomial is also called the root of the polynomial equation। अगर इस इक्वेशन को इक्वल 0 हम रख दें तो जो रूट्स आता है उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू हम करते हैं। x इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो हम थोड़ा जल्दी में कराएंगे, यानी कि स्पीड में, जिससे कि मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। इसकी वैल्यू बतानी है। किस पे बतानी है? x इक्वल टू 2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम px सपोज करते हैं, 5x - 4x² + 3, और x की जगह हम क्या रख लेते हैं? 2। तो 5 इंटू 2 -2 का होल स्क्वायर + 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 5 2 जा 10, 4 2 2 जा 4 + 3, 10 हो गया, 4 4 जा 16 + 3, 10 + 3 13, और माइनस का 16। तो 16 से 13 निकल गया, 3 आया। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि इसकी डिजिट बढ़ी हुई है। तो 5x - 4x² + 3 at x इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस इज -3। बात समझ में आ गई? अब अगर ये +3 है तो माइनस का 16 था, 3 आपके पास मिल गया जा करके, तो ये वैल्यू जो निकल के आई वो हमारी ये कैलकुलेट हो गई जा करके। x इक्वल टू 2 पे हमने इसकी वैल्यू निकाली, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 4, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे यहां पर। ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम और इसमें देख लेते हैं जो इसी टाइप से मैच करता हुआ मिलता है। कभी कभी आगे डिजिट दी होती है और उसको हम वेरीफाई कराते हैं कि वो इसका जीरो है या नहीं। जैसे क्वेश्चन हो गया कि वेरीफाई px इक्वल टू 3x + 1 at x इक्वल 1/3। तो अब आप इसमें p की जगह x की जगह 1/3 रख दीजिए, माइनस का 3 इंटू -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, ये p 1/3 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जैसे ही 0 आएगी तो हम ये कहेंगे x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये वेरीफाई हो गया।
अब अगर कोई क्वेश्चन ये होता है हमारे पास, अनदर एग्जाम्पल हम लेके आपको सेटिस्फाई कराते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 4/5 पर वेरीफाई है या नहीं, तो इसको चेक करके देख लीजिए आप। आपके पास आ गया ये -पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - 5 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हुआ, तो 0 जब नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, अगर जो वैल्यूज रखी हुई हैं इसको यहां रख दें और 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल है, यस 0 है इसका। और अगर 0 नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, ये नो, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आई, हमारी समझ से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं जिसमें बोला जाता है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरो। ये क्वेश्चन मोस्टली रहता है एनसीईआरटी में और उसमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 फाइंड द जीरो। तो कुछ नहीं करना है आपको, पी एक्स इक्वल टू 0 लिखा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5, दिस इज द आंसर। अब आप कहोगे सर ये तो लग जाता है, लेकिन हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं लगता, इसको हमने कई बार लगाया नहीं लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं, जो इसमें किया वही इसमें कीजिए। पी एक्स इक्वल टू 0 लिख लिया, पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0/3, आंसर क्या आ गया 0। अब आप कहोगे सर ये लग जाता है, हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा, इसमें भी वही करना है। इसकी जगह क्या लिखा, पी एक्स इक्वल टू 0, ये ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0/a, यानी कि 0। एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर। एक क्वेश्चन और करके दिखा दें जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 3x - 2, इसका 0 निकालना है, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। अब आप तीनों क्वेश्चन में देखिए क्या सिमिलरिटी, तीनों क्वेश्चन में ये सिमिलरिटी है कि हम इसको 0 रख रहे हैं, 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 और जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल टू 0 जा रही है। और शॉर्टकट में समझिए, इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 0 कीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5। इस पूरी वैल्यू को 0 रखिए, 3x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0/3, 0 आ गया। इसको 0 रखिए, ax इक्वल टू 0, एक्स इक्वल 0/a, 0 हो गया। इसको 0 रखिए, 3x - 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2/3। ये मेथड होता है फाइंड द जीरोज निकालने का। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम। नाउ वी हैव डिस्कस द रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? द रिमाइंडर थ्योरम इज दिस, लेट fx be a polynomial of degree n greater than equal than 1 and let b any real number when fx is divided by x minus a, then the remainder is fa क्यों लिखा? अब आप क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि सर अभी तक तो आप px लेके चल रहे थे, अब fx लेके आ गए। ये हम एक एग्जाम्पल भी दिया है कि हम px भी ले सकते हैं और fx भी ले सकते हैं। p मीन्स पॉलिनोमियल, f मीन्स फंक्शन ऑफ दिस, तो बोथ आर सेम थिंग। fx लीजिए, px लीजिए, gx लीजिए, qx लीजिए, सेम थिंग। इसी में एक वर्ड आता है डिवीजन एल्गोरिथम भी उसको बोलते हैं, और वो इसी से ही मिलता जुलता है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिविडेंड किसको माने और डिवीजर किसको माने। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है, यहाँ शॉर्ट में 5 लिखिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3। अब आप देखिए ये हमारा 5 क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया है ना। डिवाइजर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, इससे डिवाइड कर रहे थे। कोशिएंट क्या हो गया हमारा 1 हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, डिविडेंड के इक्वल आ गए। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, और प्लस जो बच गया हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हम इसमें जो रीजन हमारे आते हैं कि सबसे पहले हम इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस गिवन होता है उसकी डिग्री को चेक कर लेते हैं।
रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो उसके फिर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, अगर डिग्री 0 है उसकी या 0 से लेस है तो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और अगर डिग्री रेट हमारी रिमाइंडर से बड़ी हो गई उसकी तो आगे प्रोसीड कर जाएगा, नेक्स्ट टर्म में जाएगा। यानी सबसे पहले हम अरेंज करेंगे टर्म को डिविडेंड और डिवाइजर के डिसेंडिंग ऑर्डर की में, किसके रिस्पेक्ट में, डिग्री के रिस्पेक्ट में। फिर सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, एंड देन वी गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। अब हम जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो हम आपको डिवाइड करके भी दिखाएंगे और रिमाइंडर थ्योरम से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करके भी दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे होगा। तो अब जैसे क्वेश्चन ये आया आपके पास, क्वेश्चन ये लिखा मिलेगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको दूर किया जाए। वैसे काफ़ी हमने कोशिश की है कि इसको इजीली वैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो बिल्कुल हम आपको क्लास का ही सिंपल जैसे होता है एकदम इजीली आमने सामने बैठ के एक्सप्लेनेशन करने का ही हमने फोकस किया है। इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको अगर इससे डिवाइड करते हम तो रिमाइंडर कितना आता है। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल मेथड। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। आपको क्या करना है, x माइनस 2 इक्वल 0। x इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, अब हम पूरे फंक्शन को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी जरूर कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे इसको एफएक्स वगैरह नहीं लिखते तो वो लिखने की आदत डालिए, अदरवाइज आपके टीचर जो हैं आपके मार्क्स वगैरह डिडक्ट कर देंगे। तो ये मेथड हो गया। फिर आप लोग कहेंगे सर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तो सिंपल ही नहीं, बट यू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन। x की जगह हमने 2 लिख लिया, अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 लिख लेते। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखते चले जाइए, बाकी कुछ करना ही आपको नहीं है। सबसे इजी मेथड है। अब हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया। ये क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये क्वेश्चन है। अब हम देखो क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। x माइनस 2 गिवन था, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, x इक्वल टू 2 हो गया। ये फंक्शन हमने कॉपी कर लिया, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 आ गया। यहाँ 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये 3 है, 2 की पावर 2 है, क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 16 हो गया, ये भी आपका 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। इस पूरे डिजिट को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 21। सो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर इज 21। ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें चाहे फैक्टर की वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कुछ भी हो, आप इसमें रखते चले जाइए। अब इसके क्वेश्चन कैसे बदलते चले जाएंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर वो एक कांस्टेंट दे देगा। कांस्टेंट मतलब जैसे उसने k लिख लिया या a लिख लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कोई दिक्कत नहीं। तो वो k बिल्कुल ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में 0 कर देंगे। 0 क्यों कर देंगे, क्योंकि जब वो k लिखेगा तो बोलेगा इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिजल्टेंट 0 ही होगा। गॉट इट। अब हम एक लॉन्ग डिवीजन आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ये कैसे चलता है। बस थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको एक फैक्टर थ्योरम का भी एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप एक फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन भी बता देंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर आई होप क्लियर हो गया होगा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, सपोज दैट लेट एनी फंक्शन यानी पॉलिनोमियल बी अ
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n is greater than equal than 1 and let a be any number नहीं, रियल नंबर बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एनी रियल नंबर, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है कि अगर एफ ए इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस ए इज अ फैक्टर होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर होगा तो fx जो होगा यानी कि fa जो होगा वो 0 होगा। अब ये चीज कैसे समझ, आपको हम एक्सप्लेन करें। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? इस पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब दोबारा लिखिए इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। इसका हमें क्या निकालना है कि ये फैक्टर है। तो बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 विल बी ए फैक्टर, बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर। ये बोल रहा है, क्वेश्चन भी बोल रहा है, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो हम इसको क्या करेंगे? फैक्टर दिखाएंगे। सो फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? सबसे पहले पॉलिनोमियल को कॉपी करेंगे। कॉपी जरूर करते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिससे हम कोई मिस्टेक न हो आपके बीच में। इसमें 3 के प्लेस, x के प्लेस पे 3 रख दें आप और इसको सिंप्लीफाई कर दें जैसे अभी तक करते जाएंगे। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 17 3 जा 51 हो गया, प्लस 15 कर दिया। अब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें तो देखेंगे आपके पास 0 आ जाता है। तो जैसे ही 0 आ गया तो ये फैक्टर हो गया। तो आपने क्या लिखा? हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर से समझ लीजिए, शो x माइनस 3 इज अ फैक्टर, तो ये फैक्टर हो गया। बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इज अ फैक्टर, तो इक्वल टू 0 किया। ये पूरा पॉलिनोमियल था, इसमें x के प्लेस पर 3 रख दिया, रखते चले गए, 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया, हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर थ्योरम। क्यों? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? लेट fx बी ए पॉलिनोमियल डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बोल रहा है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। उसने क्या बोला? तो x माइनस 3 इज ए फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? आई होप फैक्टर निकालना, रिमाइंडर निकालना क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। अब इसके बाद हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट, एक फैक्टराइजेशन होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से होता है, वो बेसिकली क्यूबिक वगैरह में होता है। उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आई होप। अब हम आपको फैक्टराइजेशन बताते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप। तो फैक्टराइजेशन एक आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता है जैसे फॉर एग्जांपल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो अब हम इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? 12 इंटू 1 12 हो गया। 12 के फैक्टर कर डालिए आप, कौन कौन से होंगे? 12 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 6 होगा, 4 इंटू 3 होगा। अब इसके दो फैक्टर, इन्हीं में से कोई फैक्टर होगा। उस फैक्टर की कंडीशन क्या होगी कि उसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 ही आएगा। जैसे तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 12 आ रहा है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मिडिल टर्म 7 है वो आना चाहिए। जैसे 12 इंटू 1 12 आ गया, वन कंडीशन सेटिस्फाई। 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11, तो ये भी नहीं होगा। 6 इंटू 2 12 सही है। 6 प्लस 2 8 और 6 माइनस 2 4, ये भी नहीं होगा। 4 3 जा 12, पहली कंडीशन वेरीफाई। 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, 7 मैच कर गया, तो ये वाला हमारा फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम 12x स्क्वायर 7 को किस में ब्रेक कर देंगे? 4 प्लस 3।
इंटू एक्स प्लस, एज इट इज पूरा क्वेश्चन सेम किया, कोई नई चीज नहीं की, केवल 7 स्प्लिट हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 7 है, ये स्प्लिट हो गया, किसमें स्प्लिट हो गया, 4 एंड 3 में हो गया। नाउ वी नेक्स्ट लाइन वी ओपन द ब्रैकेट एंड अप्लाई द कॉमन। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, 4x, 4 3 जा 3x माइनस वन ले लिया तो 3x माइनस 1। सेम ब्रैकेट होनी चाहिए, अगर सेम ब्रैकेट नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 3x माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक जिसमें कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जिसमें कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, जिसमें कि पावर 3 होती है। पावर 3 की कंडीशन क्या होती है कि अब इसमें देखिए 2 आया, तो 2 को अब हम लेते हैं, 2 को लास्ट डिजिट कॉपी कर लेते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, दोनों में प्लस माइनस लगा दीजिए। प्लस माइनस का मतलब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोला जाता है। हम पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख के देखेंगे, अगर 0 आ जाता है तो रुक जाएंगे, अगर 0 नहीं आया तो x की जगह फिर -1 रख के देखेंगे, 0 आया तो रुक गए, नहीं आया तो आगे बढ़ गए, इसकी जगह 2 रख के देखेंगे, x की जगह -2 रख के देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट किया, इसका मतलब हमारे पास px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। 1 हमने पुट किया, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1। अब आप देखिए 2 + 1 3 और -2 -1 मतलब 3 - 3, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे 0 आ गया तो हम इसके फैक्टर हो गए कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, x - 1 इज अ फैक्टर। भाई x इक्वल टू 1 था तो 1 इधर जाएगा, x - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये x - 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, हमने रिमाइंडर थ्योरम में ही पढ़ा था, ये 0 हो गया तो ये फैक्टर हमारा हो गया। फैक्टर थ्योरम में भी यही चीज पढ़ी थी, अगर ये वैल्यू 0 कर रही है तो ये फैक्टर हमारा उस पूरे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो ये पूरे हमारे x - 1 फैक्टर हो गया। अब हम x - 1 रखेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड किया। अब आप इसका डिवीजन देख लीजिए, यहाँ क्या है क्यूब, यहाँ क्या है 1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पूरा कॉपी करेंगे और ये लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखते हैं। हो सकता है मे बी पॉसिबल ये एक्स स्क्वायर यहाँ ना होता तो हम इसको सेपरेट रखते जाके, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ एक एक्स की नीड पड़ेगी। जैसे यहाँ 3 था यहाँ 1 था तो एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ एक्स सेपरेट किया तो 1x की नीड पड़ी, माइनस साइन लगा तो माइनस लगा दिया, एक्स और एक्स मिलके हो गए माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ x है x से मैच कर गया, 2 नहीं मैच कर रहा तो 2 लिख दीजिए, तो माइनस का 2x और प्लस का 2, साइन चेंज कर दीजिए आप, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया हमारे पास। अब आप देख रहे हैं ये पूरा 0 हो गया। तो आपने पहले पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये किसके इक्वल हो गया है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट हो गया। तो कोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं। इसके फिर फैक्टर कर दीजिए, वही जो मेथड हमने आपको यहाँ बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो ये -2x प्लस एक्स किया, -2x क्यों मिल गया, देखिए -2 और +1 मिलके माइनस का 2 हो गया, -2x से x सेपरेट कर दिया तो -x हो गया, x - 1 x कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो x - 2 कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, x - 1 ले लिया, x - 2 इधर कॉमन ले लिया, x + 1 हो गया। थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज कर दें, ना अरेंज करें तो जहाँ पे लिखा था वहीं छोड़ दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक इंडिकेट कर दीजिए थोड़ा सा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, तो आगे इसको बताया भी जा सकता है। वैसे डिवीजन बहुत आसान है, डिवीजन की आप लोग 2-3 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लें तो डिवीजन आपका काफ़ी हद तक इजीली सॉल्व हो जाएगा।
आप कोशिश करें कि क्यूबिक के ही डिवीजन की प्रैक्टिस करें, उससे बेनिफिट आपका ये होगा कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप हमने आपके पॉलिनोमियल के मोस्टली सारे टर्म कवर कर दिए हैं। बेसिकली दिक्कत हो जाती है कि जीरोज कैसे फाइंड करें, डिग्री कैसे फाइंड करें, फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम उससे कोशिश करेंगे कि हम आपको वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको फिर से बताया जाए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।